Hello student, welcome to my computer classes. Today's my topic is linking. In this video I will explain a text of chapter 4 in class 10, subject computer. What is linking? Link or what make up the web, actually creating a spider web like structure with interconnections like allow us to connect one piece or document or image. We can even create email links. HTML stands for hypertext markup language. Hypertext contain hyperlinks, that is tags that are linked to other pages. Very important lines. टेस्ट दैट आर लिंक टू अदर पेजेस. ओके, जो हमारा वेब पेजेस का टेस्ट है, जो वेब पेज है हमारा, उसे हम दूसरे पेज से कैसे लिंकिंग करें. उस पर जैसे दूसरे पेज पे जैसे हमें कोई मैसेज सेंड करना है या दूसरे पेजेस को अपने वेबसाइट से कैसे कनेक्ट करना है. ओके, तो देन वी यूज़ द हाइपर लिंकिंग. ओके, linking is the basically of two types. First is the external linking and second is the internal linking. Okay, let us discuss external linking and internal linking. First is the external linking. When one page is linked to another page. Okay, suppose that is as a page A and it connect a page B. Okay, connected. When one page is linked to another page or document, it is called external linking. That is, on clicking any link, another document is open. सपोज दैट किसी भी लिंक पे हम क्लिक करते हैं, जैसे हम गूगल पे कुछ सर्च करते हैं और उस लिंक पे जैसे कि लिंकिंग जो हमें प्रोवाइड होती है उस पर जैसे हम क्लिक करते हैं तो दूसरा पेज ओपन हो जाता है. इट इज़ कॉल्ड एक्सटर्नल लिंकिंग. क्लियर? Next is the internal linking. What is the internal linking? When one part of the web page is linked to some information at a different location on the same page or same segment of text in another document is called internal linking. Clear? Simply we can say that when a part of web page or document is linked to another part of the same document, it's called internal linking. Same document means suppose that एक सेम पेजेस है मेरा, मैंने उसे रीड करते हुए आ रहा हूँ. ओके, जैसे कि एक पेजेस है, इसमें मैंने जैसे यहाँ से यहाँ तक रीड किया और जैसे ही मैं इसके बॉटम पे क्लिक करता हूँ तो मेरा जो कर्सर है वो टॉप पर आ जाता है, मैं ऊपर ही उसी पेज की कोडिंग पर पहुँच जाता हूँ. इट इज़ कॉल्ड इंटरनल लिंकिंग. सेम पेज में जो लिंकिंग हम यूज़ करते हैं, दूसरे पेज को कनेक्ट नहीं करते हैं, वो इंटरनल लिंकिंग हुई इनसाइड द वेब पेज. ओके, डन. Next, HTML provide us with anchor element of A used to create link which has to be used along with the help attribute. ओके, लिंकिंग के लिए हम कौन सा एलिमेंट यूज़ करते हैं? एंकर एलिमेंट यूज़ करते हैं. एक्सटर्नल लिंकिंग यूजिंग एंकर एलिमेंट ए. सिंटैक्स ए हैरिफ इजकल टू URL डॉक्यूमेंट नेम, कोई भी आप URL दे सकते हो. टेस्ट दैट विल एक्ट एज एन हाइपर लिंक, जिस पे आपको टेस्ट राइट करना है, जैसे कि गो टू नेक्स्ट पेज, क्लिक हेयर, then write here, then close the anchor tag. And a second example is arif, जैसे http और www.amazon.com, उसने कोई वेबसाइट का नेम उसने लिंक कर दिया. जैसे ही वो ग्रेट बुक्स पे क्लिक करेगा तो उसका ये वाला जो http www.amazon है, ये वाला वेब पेज ओपन हो जाएगा. सेम नेक्स्ट arif next.html, जो next.html है, दिस इज द कोई वेब पेज नेम that is connected to other web pages. Click here for the next page. जैसे वो click here पे क्लिक करता है तो वो नेक्स्ट पेज पे उसका जो
माउस कर्सर है या सिस्टम की जो स्क्रीन है वो नेक्स्ट पेजेस पे ओपन हो जाते हैं. ओके. In the first case, the href is using the complete URL since it linked to a page that is on a different website. But in the second case, only partial URL is used as the page is located in the same location or directory as the current HTML document. Or now let us create our own links. For example, create an HTML document with hyperlinks to other HTML document. Okay. Suppose that I when create a two pages. First web page name is A and second web page is B. Then how can connect it to each other? हम उन दोनों को कैसे कनेक्ट करेंगे? विद द हेल्प ऑफ एक्सटर्नल लिंकिंग. ओके. इन दिस सॉल्यूशन HTML हेड टाइटल्स या तो क्लियर है, बॉडी भी आपका क्लियर हो गया होगा. ए href HTTP उसने कोई एक लिंकिंग दिया और एक इस साइट फॉर ग्रेट बुक amazon.com. जैसे आप इस पर क्लिक करते हो तो वो साइट ओपन हो जाएगी. ए href में उसने एक लोकेशन दे दिया, URL एड्रेस दे दिया उसका इमेज लिंकिंग का, जैसे कि डी इमेज .html. क्लिक हियर फॉर द नेक्स्ट पेज, वो नेक्स्ट पेज पे चला जाएगा. अब ये टू टाइप्स ऑफ लिंकिंग आ गई. इट इज़ द फर्स्ट एंड सेकेंड. इसमें दोनों आपका क्या है, क्लिक हो रहा है, एक्सटर्नल लिंकिंग है और वो ओपन हो रहे हैं पेजेस. क्लियर है. नेक्स्ट इज द इमेज लिंकिंग. इमेज लिंकिंग, व्हाट इज द इमेज लिंकिंग? Image linking, you have just seen that text can be used as a hyperlink, but have you even seen more interesting concept of using image as hyperlink? That means if you want to click a image, then open a next web page या other web page, you use a image linking. These are very useful for websites that use many images and people who serve not want to read a lot of text. That means सपोज करिए कोई यूज़र वेबसाइट पर सर्व कर रहा है, अपना टॉपिक सर्च कर रहा है, वो नहीं चाहता कोई बहुत बड़ा टेस्ट उसे पढ़ना हो वो इमेज के थ्रू. जैसे कि सपोज करो मैंने टूरिस्ट प्लेसेस डाल दिए, टूरिस्ट प्लेसेस पे मैं नेम नहीं पढ़ना चाह रहा हूँ, उसकी इमेजेस आती जाएँ और जिस टूरिस्ट प्लेसेस के बारे में मुझे पढ़ना है उसके प्लेस की पिक पे मैं क्लिक करता हूँ और उसकी इन्फॉर्मेशन खुल जाती है. तो क्या है, पिक पे क्लिक करने से हमारा वेब पेज ओपन हो रहा है दूसरा वाला. तो ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, इमेज लिंकिंग कहते हैं. ओके, डन. Example, write the HTML code to create an image linking. HTML head ये क्लियर है. आपने देखिए अब li इसने एक अनऑर्डर लिस्ट का यूज़ किया है, उसमें li में कोई नो प्रॉब्लम. आप li में भी आप जहाँ पे भी आपको लिंकिंग यूज़ करना है, ऐसा नहीं आप li में भी यूज़ नहीं कर सकते हैं या अनऑर्डर में या ऑर्डर में नहीं कर सकते हैं. ये तो डिपेंड करता है, जैसे कि आप वेब पेज जैसा क्रिएट करना चाह रहे हैं. ठीक है, उसने li में दिया ए href इक्वल टू फाइल लोकेशन. फाइल लोकेशन के बाद उसने पूरा इसमें डिफाइन कर दिया इंटरेस्ट इन फ्लावर्स. पूरा बॉर्डर 0 दे रखा है. इंटरेस्ट इन फ्लावर पे जैसे आप क्लिक करते हो, इंटरेस्ट इन फ्लावर पे जैसे आप क्लिक करते हैं तो ये जो लिंकिंग हमने दे रखी है D:फ्लावर्स, ये इसकी ओपन हो जाएगी. ओके, डन है. और सेकंड li ए href D बाई बुक दे रखा है HTML. ओके, एंड दिस इज सेकंड लिंकिंग इमेज. जैसे आप इस पर क्लिक करते हो आपकी इन्फॉर्मेशन ओपन हो जाती है. ओके, next is email linking. What is email linking? An email link can be created very easily and in the same way, just a small change. We use mail to option, mail to this, mail to, and email address must be written instead of a web page's address. जैसे suppose that मैंने web page पे
ओपन हो रहा था, मैं चाहता हूँ जैसे कि कोई क्लिक करे, मेरा मेल, किसी की ईमेल आईडी मैंने अटैच कर रखी है, उस पर वो मेल चला जाए, तो मैं उसके लिए क्या करूँगा, ए आर इक्वल टू मेल टू लिखूँगा, देन कॉलन और ईमेल एड्रेस। दिस फर्स्ट लाइन, रीड दिस फर्स्ट लाइन केयरफुली, इंसर्ट टैग हियर फॉर ईमेल लिंक। यहाँ पर कोई भी टैग आप लिखोगे जिस पे आप क्लिक करना चाहते हो, जैसे एग्जांपल में आप देख सकते हैं ए आर मेल टू कॉलन cordova123@gmail.com। कोई उसने एक ईमेल एड्रेस लिख दिया प्रॉपर, मेल मी पे क्लिक करेंगे तो वो मेल कहाँ जाएगा, दिस ईमेल आईडी पे जाएगा। क्लियर है? ओके, डन। एग्जाम्पल 10, राइट द HTML कोड टू क्रिएट एन ईमेल लिंक। सॉल्यूशन, HTML हेड टाइटल दे रखा है उसने, ये आप बॉडी के बाद S3 में यूज़ उसने किया, हियर इज एन ईमेल लिंक फॉर यू, ईमेल लिंकिंग का यूज़ कर रहे हैं। इफ़ यू नीड प्लीज़, अगर आपको कोई सपोज करो, इफ़ यू नीड प्लीज़ माने जैसे कि आपने एक वेबसाइट क्रिएट की, शॉपिंग वेबसाइट है या कोई कंप्लेंट के लिए आपने कुछ लिखा है, तो आपने वहाँ पे लिखा इफ़ यू नीड, आपको कंप्लेंट करने हैं या शॉपिंग के लिए कोई भी मेल देना है हमारे ऑर्गेनाइजेशन को, तो आप मेल मी पे क्लिक करें और जो ऑर्गेनाइजेशन की आईडी है वो आप आईडी यहाँ पर राइट करेंगे, मेल में लिखने के बाद देन उसे एंकर टैग को क्लोज कर देंगे, बॉडी HTML, देन ओके। व्हाट इज़ द इमेज लिंकिंग? क्लियर? डन। नेक्स्ट इज द यूजिंग द टाइटल एट्रीब्यूट। Title attribute. This. What is the use of title attribute? देखिए सिंपली मैंने अभी आपको इमेज इससे पहली वीडियो में आपको बताया था, इमेज में भी हम टाइटल एट्रीब्यूट का यूज़ करते हैं। टाइटल एट्रीब्यूट डिस्प्ले और टूल टिप माने एक मैसेज डिस्प्ले करता है व्हेन यू मूव अ कर्सर ओवर द इमेजेस और लिंकिंग। जैसे इमेज के ऊपर हम कोई माउस लेके जा रहे थे तो वहाँ एक मैसेज शो हो रहा था, सेम जैसे हम एक अपना जो लिंकिंग हमने दे रखा है, जैसे मेल भी मैंने यहाँ पर अभी यूज़ किया था, जब मेरे वेब ब्राउज़र पे मेल में भी एक लिंकिंग यूज़ होगा तो मैं जैसे उस पर माउस का कर्सर लेके जाऊँगा तो एक मैसेज शो हो जाएगा टूल टिप। अब वो मैसेज किसके थ्रू शो होगा? टाइटल एट्रीब्यूट के थ्रू। क्लियर है? आपकी बुक में भी आप देख कर लेते हैं। This attribute is used to set a title for the created link. In fact, this gives the user an idea about the kind of document that is linked. It is just a text enclosed in double quotation which will appear when the mouse will be moved over a link. Over a link जैसे माउस को हम जब मूव करते हैं, आप यहाँ देख सकते हैं, दिस इज द, तो जो मैसेज मैंने इसमें टाइटल में लिखा होगा वो आपको शो होता है। राइट एन HTML कोड टू क्रिएट अ लिंक। देखिए दिस इज़ द मैसेज डिस्प्ले, जब माउस को आप लेके जा रहे हो, टाइटल में देखिए क्लिक हेयर ये लिखा हुआ है, क्लिक हेयर, तो ये वाला देखो ये क्लिक हेयर जो सिंपल छोटा सा बॉक्स है, ये आप टूल टिप कहते हैं इसे। मैं अगेन हाईलाइट करता हूँ, इसे रिपीट कर रहा हूँ। जैसे कि आप इस वाली कोडिंग को आप देखिए, जूम कर देता हूँ मैं, ए हैरी मेल टू लिखा हुआ है पूरा, इसमें जो टाइटल में क्या लिखा हुआ है, क्लिक हेयर मेल मी। जैसे मेल मी पे मैं लेके जाता हूँ तो मेल मी पे क्लिक हेयर, दिस इज़ द टूल टिप, ये मैसेज शो होता है माउस को जैसे लेके जाऊँगा। ओके, डन। एंड देर आर डिफरेंट टाइप्स लिंकिंग द अदर टाइप्स ऑफ फाइल फॉर डाउनलोडिंग। हम डाउनलोडिंग फाइल कर सकते हैं, कोई भी एड्रेस आप वहाँ पर दे सकते हो, फाइल की लोकेशन दे सकते हैं। ओके, दिस आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिंकिंग फॉर डाउनलोड फाइल। जैसे ए हैरी, कोई भी डॉक्यूमेंट मेरे को डाउनलोड करना है, वो डॉक्यूमेंट मैंने अटैच किया उसका, और दिस टाइम यू वेयर लिंकिंग एक्सटर्नल HTML डॉक्यूमेंट, यू कैन डू this with other kinds of files also for downloading purpose by just typing the name of document with a proper extension। proper extension माने एक जैसे कि PDF फाइल है तो .pdf लिखिए, और डॉक्यूमेंट है तो .docx लिखिए, डाउनलोड एनी माई फ़ोटो एल्बम, आप जो लिंकिंग दे रहे हो ये दिस उसे लिखिए, जैसे ही वो इस पर क्लिक करेगा ये डॉक्यूमेंट डाउनलोड होने। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक इज इंटरनल लिंकिंग टू लिंक टैग्स विद इन द सेम डॉक्यूमेंट। इफ आई हैव लार्ज पेज विद इन अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन,
then it becomes necessary to link different sections of the same document to increase access to information. This is called internal linking. सिंपली मैं पहले आपको बता चुका हूँ बेटा, जो इंटरनल लिंकिंग होती है, इट इज़ अ पार्ट ऑफ द सेम डॉक्यूमेंट. Okay, when a part of web page or document is linked to another part of the same document together, this is called internal linking. एक ही पेज में जो हम लिंकिंग यूज़ करते हैं, और जैसे कि हम कोई इंटरनेट पे जैसे हम कोई स्टडी करते हैं तो उसे रीड करते हैं कोई भी इंस्ट्रक्शंस को, या पीडीएफ रीड करते हैं कोई भी, तो हम टॉप टू बॉटम आ जाते हैं, तो हम बॉटम पे एक लिंकिंग दी जाती है गो टू टॉप, हम उस पर क्लिक करते हैं तो सेम पेज की हम जो सेगमेंट होता है उसका उसके टॉप पर आ जाते हैं. ओके, दिस इज कॉल्ड इंटरनल लिंकिंग. क्लियर है? डन. अ स्टेप टू क्रिएट इंटरनल लिंकिंग, क्रिएट ए नेम फॉर पार्टिकुलर सेगमेंट ऑफ टेक्स्ट यूजिंग द नेम एट्रीब्यूट. नेम एट्रीब्यूट, ये नेम एट्रीब्यूट का यूज़ करते हैं. यहाँ पर उस एक नेम देना होता है हमें जो सेगमेंट को, जिसे वो लोग फाइंड करता है कि जहाँ पर आपका कर्सर जाना है. ओके, ए नेम इक्वल टू पार्ट 1 दे रखा है, और जो पार्ट 1 जो सेकंड वाला पार्ट 1 जो लिखा हुआ है एंकर टैग जहाँ क्लोज हो रहा है उससे पहले दिस. ओके, तो यहाँ पर आप कुछ जो भी राइट करेंगे वो इस सेगमेंट को फाइंड करेगा और आपका कर्सर आके यहाँ पे रुक जाएगा. और सेकंड स्टेप जो होता है इसका, क्रिएट अ लिंक टू पार्टिकुलर सेगमेंट यूजिंग हैरिप एट्रीब्यूट. फर्स्ट इज द नेम एट्रीब्यूट एंड सेकंड इज द हैरिप एट्रीब्यूट. एंकर टैग बट विद अ स्मॉल चेंज इन सिंटैक्स. ए हैरिप इक्वल टू हैक्स पार्ट 1. सेम जो आपने पार्ट 1 ऊपर लिखा था नेम में, नेम इक्वल टू पार्ट 1, वही वैल्यू जो पार्ट 1 जो आपने लिखा है वही आपको यहाँ लिखना होगा. अगर पार्ट 1 की जगह आप कुछ और लिखते हैं तो सेम वर्ड्स आपको हैग्स के आगे लिखने होंगे. हैग्स द रेफरेंस उसे फाइंड करता है. गो टू पार्ट 1 माने जहाँ पर आप क्लिक करना चाह रहे हो. ओके, आप इसे राइट कर सकते हो. जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक बता दे रहा हूँ, ये वेब पेज है, आपको बॉटम पे क्लिक करना है, और बॉटम पे जैसे आपको यहाँ पर क्लिक करना है तो टॉप पे जाने के लिए तो आप बॉटम में क्या लिखोगे, ए हैरिप इक्वल टू हैक्स पार्ट 1 गो टू टॉप, गो टू टॉप. अगर आपको टॉप में क्लिक करना है और बॉटम पे आना है तो ए हैरिप हैक्स वाले को आप कहाँ पे लिखोगे, टॉप पे लिखोगे. ठीक है, और ए नेम वाले को बॉटम में. और लेट अस डिस्कस एग्जाम्पल 13 in your book. Internal document line link text within the same document solutions. Answer is that HTML head, title open, title close, HTML head, close, body, H1 UL. these are the different types of tag यूज़ हो रहे हैं. मैं आपको इंटरनल लिंकिंग बता देता हूँ, इसमें जूम कर देता हूँ. जैसे कि सबसे पहले इसने यूज़ किया है दिस ए नेम फ्लोवर. इसने एक सेक्शन पार्ट जो फर्स्ट स्टेप है वो ऊपर फॉलो कर लिया, वो उसे फाइंड करेगा. जो इसका जो लिंकिंग है उसने दिया है वो इसने नीचे दे लगा है, जिसमें आप यहाँ अंडरलाइन कर रहा हूँ, आप देख सकते हो. ए फ्लोवर दिस टू गो टू द फ्लावर सेक्शन. तो गो टू द फ्लावर सेक्शन माने जो ऊपर फ्लावर सेक्शन है वहाँ पर हमारा कर्सर चला जाएगा. और जो नेम इसने फ्लावर्स लिखा है ऊपर ए नेम में भी फ्लावर्स दे रखा है, और उसी को हमने रेफरेंस बना दिया है बॉटम में, ए हैरिप इक्वल टू हैग्स फ्लावर्स. क्लियर है? इसमें एक और हमने इंटरनल लिंकिंग यूज़ की है, ए हैरिप बुक्स दिस. ये क्लियर है? अब ये टॉप पे जैसे हमें क्लिक करना है, इसका जो सेक्शन का रेफरेंस है वो हमने बॉटम में दिया है. इस लिंकिंग में आप ऐसा है कि स्टेप 1 को अगर ऊपर लिखते हैं, जो स्टेप 1 इसकी बात कर रहा हूँ मैं बेटा, तो स्टेप 1 को ऊपर लिखते हैं तो स्टेप 2 को जहाँ आप लिखोगे वहाँ पर क्लिक करेंगे वो स्टेप 1 पे चला जाएगा. अगर स्टेप 2 को ऊपर लिखते हैं तो वो स्टेप 1 को अगर नीचे लिखते हैं तो जो कर्सर है जो डॉक्यूमेंट है वो सेक्शन पे स्टेप 1 पे चला जाएगा. तो इसमें दिस ए हैरिप बुक्स में जो उसने अब लिखा है हैक्स बुक दिया है, तो जहाँ पर जो नेम दिया है बुक्स दिया है तो ए नेम हमने भी यहाँ पर भी हम क्या देंगे, बुक देंगे दिस. ओके, मैं रेड कर देता हूँ इस कर्सर को, आपको शायद क्लियर हो जाए सेकंड वाला पॉइंट. ओके, दिस इज़ द ए बुक और इसकी द सेक्शन पार्ट. क्लियर है? ये दो लिंकिंग दे रखी हैं, जूम करके देख लो आप. क्लियर है बेटा? तो सेम आउटपुट विल भी, अब जो आउटपुट आपके सामने शो हो रहा है, ए नेम इज़ अ फ्लावर्स, ये देखो दे रखा है, और ए नेम बुक्स दोनों दे रखी हैं. फ्लावर की लिंकिंग कहाँ है,
दिस, इस पर क्लिक करेंगे तो हम कहाँ पर पहुँच जाएंगे, यहाँ पे आ जाएंगे। और बुक्स की लिंकिंग कहाँ है, गो टू बुक सेक्शन दिस, इस पर हम क्लिक करेंगे तो हम यहाँ पर आ जाएंगे। ओके, दिस इज द इंटरनल लिंकिंग, सेम डॉक्यूमेंट में हो रही है, सेम पेजेस पे हो रही है, तो इंटरनल लिंकिंग क्लियर है। ओके, डन। Next is the internal linking to link text between different document. You have learned to create an internal linking between text on different parts of the same document. Such links can be created between two sections of text lying in different document also. For example, consider two documents. First is the my homepage.html and another is my profile.html. Why don't you try creating a hyperlink on my homepage.html, which when clicked should take you to segment of text on my profile HTML. क्लियर है, दो डॉक्यूमेंट है, अगर हमें इसमें आप एक लिंकिंग अपने इंटरनल लिंकिंग क्रिएट करनी है तो हम कैसे क्रिएट करेंगे, उसके लिए कुछ स्टेप्स हैं। फर्स्ट स्टेप ये है आपका क्रिएट अ डॉक्यूमेंट कॉल्ड दिस, पहले इसके नाम से कोई डॉक्यूमेंट आपको क्रिएट करना पड़ेगा, फिर उसमें ये लिंकिंग आपको राइट करनी होगी। देन क्रिएट अ डॉक्यूमेंट कॉल्ड दिस, एक वेब पेज आपको बनाना होगा और दिस वेब पेज को जैसे आप बनाएंगे तो एक दूसरे से लिंकिंग को आप स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो आपका जो कोडिंग है वो रन हो जाएगी। ओके, सो इट इज़ अ प्रैक्टिकली क्लियर है, तो इसके मैं कुछ वीडियो प्रैक्टिकली शेयर करूँगा आपसे। आफ्टर द टैक्स एक्सप्लेनेशन ऑफ चैप्टर 4, जैसे टैक्स एक्सप्लेन इसका पूरा मैं आपको ओवरव्यू थोड़ा सा बता देता हूँ, उसके बाद वीडियो और शेयर करूँगा जिसमें पूरा प्रैक्टिकली मैं स्क्रीनशॉट दूंगा आपको कैसे कोडिंग करनी है, कैसे उसको यूज़ करना है। ओके, ऑल्सो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर गेट अ न्यू कंप्यूटर वीडियोस एंड नोटिफिकेशन, एंड थैंक्स टू ऑल स्टूडेंट फॉर वॉच दिस वीडियो एंड हैव अ नाइस डे। Our next topic will be discuss next video, creating a table.